خوشحالی وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر معاملے میں اس کا خیر ہوتا ہے، انجام اس کا بھلائی کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایمان والا ہی اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہوتا ہے۔ کافر کی یہ بس بات نہیں۔ جب مصیبتوں میں گر جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، تو وہ لوگوں کے سامنے ڈھڈورا پیٹتا ہے، لوگوں کے سامنے جا بجا جا کے کہتا ہے کہ میں مصیبت میں گر گیا، میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اور جب نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو اللہ کو بھول کر اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے، پیتا ہے، کبھی شکر گزاری نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں یہ بات بتائی کہ عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایمان والے کا جو معاملہ ہوتا ہے، جب اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، صحت اور تندرستی، مال و دولت، تمام چیزیں جب اس کے حق میں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ الصَّبْرِ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، ایک ایمان والا جب اس کے پر مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کی کیفیت کو بتایا ہے کہ اس کا معاملہ عجیب ہے، اور ہر کام میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھا ہوا ہے، اور ایمان والے ہی کے بس میں ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے۔ کافر، نافرمان، یہ اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے، یہ بے صبری کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو بتایا ہے، ہم تمام کی زندگیاں صبر کے اندر میں اور شکر کے اندر میں گری ہوئی ہے، بیک وقت دونوں ایک ساتھ ہے۔ زندگی کے کچھ حالات بہتر ہیں، اور زندگی کے کچھ معاملے ایسے ہیں جس پر صبر کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اسی کے اندر ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اس قانون کو سمجھیں، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری اتنی زیادہ کہ جسم پورا زخموں سے بھرا ہوا، اور اولاد ایک کے بعد ایک ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، اولاد ختم ہو گئی، جسم بیماریوں کے اندر پڑا ہوا ہے، جتنا مال اور دولت تھی سارا ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور یہ معاملہ ایک ہفتے کا نہیں، ایک مہینے کا نہیں، ایک سال کا نہیں، 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اللہ کے سامنے۔ اور صبر بھی جو ہوتا ہے نا، امتحان اللہ کی طرف سے، جو بندہ پہلے سے غریب ہو تو اس کو کوئی دکھ نہیں لگتا، جو بندہ شروع سے ہی بیمار ہو اس کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت سے پہلے نوازا تھا، صحت اور تندرستی ان کے پاس تھی، اہل و عیال، یہ تمام خوشیاں ان کو نصیب تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو آزمایا،
आजमाइश में मुब्तला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया में से किसी को आजमाया है सब्र के जरिए से, और किसी को आजमाया है नेमतों के जरिए से। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ पर मामला हम देखते हैं। 18 साल जिस्मों पे जख्म है, तकलीफ इतनी ज्यादा, एक के बाद एक औलाद का इंतकाल हो रहा है, और माल दौलत खत्म हो चुका है, तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से कहा, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे प्यारे रब, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, मेरा ये यकीन है तू बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। इस आयत के तर्जुमे में हम गौर करें तो देखते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, मुझे अल्लाह तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह तू बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। यही जुमला कहा। चाहे तो ये भी कह सकते थे, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर फशफिनी, ऐ अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे, ये भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। अगर सारी जिंदगी ये तकलीफ है तो मुझे काबिल कबूल है, लेकिन ऐ अल्लाह तकलीफ बहुत पहुंची है। व अंत अरहमुर राहिमीन, एक नबी होते हुए अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को आजमा रहा है यहाँ पर, और नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से क्या कहा, ऐ अल्लाह बच्चों की वफात नजरों के सामने, घर उजड़ रहा है, मालो दौलत खत्म हो चुकी, और जिस्म भी ऐसा है कि बीमारी के अंदर, और ये 18 साल का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया है। हम कुरान को पढ़ेंगे तो ये वाकयात हमें पता चलेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे आजमाया है। आज हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आ गई या परेशानी आ गई, हम लोगों से कहते फिरते हैं, लोगों के सामने कहते हैं कि मुझे परेशानी आ गई, मुझे मुश्किल आ गई। हम जरा गौर और फिक्र करके देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन, ईमान वाले का मामला अजीब है, इन्ना अमरहु कुल्लु लहू खैर, उसके हर काम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर होता है। उसको जो मुसीबत लाहिक होती है, जो परेशानी उसको अपनी जिंदगी में आती है, उसका अंजाम यकीनन खैर होता है। ये ईमान वाले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ईमान वाला हर मामले के अंदर जब नेमतें मिलती हैं, अल्लाह के सामने शुक्र करता है, अल्लाह को भूलता नहीं है। नेमतें मिल गई, अल्लाह को नहीं भूलता, अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, कहता है कि अल्लाह तूने मेरे ऊपर इनामात की बारिश की है, रहम करम का तूने मेरे साथ मामला किया है, ऐ अल्लाह शुक्र है। और जब उसकी जिंदगी मुसीबत के अंदर आती है तो वो सब्र करते हुए, कि उसको ये बात पता है कि ये अल्लाह की तरफ से मुसीबत आई है और अल्लाह ही की तरफ से खत्म होने वाली है, मेरा काम तो ये है कि मुझे सब्र करते रहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, ये मोमिन के अलावा किसी और की बस की बात नहीं है, काफिर के बस की बात नहीं है सब्र करना, शुक्र करना, वो तो अल्लाह का नाफरमान होता है। तो हम तमाम को चाहिए, अगर हम ईमान वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, इन इबादतों को करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ये गौर और फिक्र करें कि अल्लाह की जो दी हुई नेमतें हैं, क्या उसके ऊपर मैं हमेशा शुक्र कर रहा हूं, और जो मुश्किलात मेरी जिंदगी में आज आई हुई है कल नहीं रहेंगी। हमेशा हर मुश्किल हमेशा नहीं रहती, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी यकीनी है। तो हम अपनी जिंदगियों के अंदर ये गौर और फिक्र करें कि क्या मैं सब्र कर रहा हूं, या अल्लाह का नाशुक्रा तो नहीं बन गया, या मैं बेसब्रा तो नहीं बन गया। मोहतरम सामाईन इकराम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह बहुत तकलीफ पहुंची है, ऐ अल्लाह तू बहुत ज्यादा रहम करने वाला है।
अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, हमने हजरत अय्यूब को सबर करने वाला पाया है, ये बहुत प्यारा बंदा है। 18 साल जिस्म बीमारी के अंदर, जिस्म जख्मों से चूर है, औलाद हलाक हो चुकी है, माल और दौलत खत्म हो चुका, सब कुछ लुट चुका। 18 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, उरकुस बिरिजलिक हादा मुख्तसलुम बारिदुन व शराब, अय्यूब पैर को जमीन पर मारो और इस ठंडे पानी को पियो और नहाओ। जैसे ही हजरत अय्यूब ने ये मामला किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिफा दे दी। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, याद रखना किसी चीज के मिल जाने के बाद महरूम हो जाना ये बड़ा दुख देता है। सब चीजें नजरों के सामने थी, अचानक वो चीजें खत्म हो गई, ये इम्तिहान बड़ा दुख देता है। इसके अंदर सब्र करना ईमान वाले की अलामत होती है। हम तमाम को चाहिए कि हम सब्र करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत अता की, और ऐसी बादशाहत जिन्नात और तमाम चीजें आपकी हुकूमत में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर कि मेरे बाद किसी को ये मुनासिब ना हो, बेशक तू बड़ा ही बख्शने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सल्तनत आपको अता की कि जिन्नात, एक मर्तबा मलके सबा बिल्कीस का तख्त लाने का मामला, एक जिन ने आके कहा कि आप जितनी देर मजलिस में बैठते हैं उसके खत्म होने तक मैं यहां पर ला के पेश कर दूंगा। यमन से फलस्तीन तक 2500 किलोमीटर जाना, 2500 किलोमीटर आना, 1500 किलोमीटर जाने और आने का फासला 3000 किलोमीटर। एक जिन आया और आकर हजरत सुलेमान से कहा, पलक झपकने के बखदर मैं यहां पर पहुंचा दूंगा। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत है जिनों के ऊपर में। ये मामला अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाजा था। बादशाहत, शोहरत, हर चीज से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। हालांकि हर चीज पर अपनी हुकूमत रखते हैं, बादशाहत रखते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने आजिज होकर क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फजीलत दी है ईमान वाले बंदों में, बहुत ज्यादा ईमान वालों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फजीलत बख्शी है। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे शुक्र करने की तौफीक अता फरमा जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अल्लाह तूने दिया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया हुआ था, बहुत सारी नेमतें इनको मिली हुई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वान अअमल सालिहन तर्ज़ा, ऐ अल्लाह ऐसा अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी होता हो। वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन, ऐ अल्लाह अपनी रहमत के साथ मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा। तमाम चीजों के मिलने के बाद, हर चीज की नेमतों के पालेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, नेक बंदों में और अच्छे काम करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिलता है
کہ माल और दौलत के कमाने के अंदर, और माल और दौलत इतना ज्यादा कमाने के चक्कर में इतना वो दीन से गाफिल हो चुका है, दीन से दूर हो चुका है। अब नमाजें याद नहीं रहती, या तो जुमा की नमाज पढ़ता है या तो ईदैन की नमाज पढ़ता है। सिर्फ ये छोटी से चंद पैसे जिसके बारे में हमेशा रहने की कोई गारंटी नहीं है, और थोड़ी सी सेहत जिसके बारे में हमेशा मजबूत रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ मिल गया, अब अल्लाह को भूल गया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखते हैं, वहां हजरत अय्यूब सब्र कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने जो कुछ दिया है मुझे अल्लाह तौफीक अता फरमा, शुक्र करने वाले बंदों में मुझे शामिल फरमा, नेक सालेह बंदों में मुझे शामिल फरमा, और नेक सालेह बंदों में मुझे शामिल फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मक्का के अंदर 13 साल और मदीना के अंदर 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलों को बर्दाश्त किया, तकलीफें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की। अब जब अल्लाह के नबी मदीना आए हिजरत से, तो यहाँ पर मुनाफिकीन भी है और यहूदी भी है, दोनों दुश्मन मौजूद है यहाँ पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते रहे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, रातों में खड़े होते तो पैरों में वरम आ जाते, और अल्लाह के सामने जब कुरान पढ़ते तो इस तरह कुरान पढ़ते अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी के सीने से जिस तरह हंडी में पकने की आवाज आती है, खशियत की वजह से ऐसी आवाजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये मामला, जब सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपके तो अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं अल्लाह की तरफ से, तो आप इतना अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हाँ, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबत के अंदर जिंदगी घिरी हुई है, लेकिन अल्लाह के नबी की जबान पर शुक्र है, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, हमारे सामने अल्लाह की किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियां मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी आज हमारी नजरों के सामने अहादीस की शक्ल में मौजूद है। हम तमाम को चाहिए कि हम नमाज जिस तरह पाबंदी से पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, रोजे रखते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर खास कर हमेशा शुक्र करने वाले बने, अल्लाह के सामने शुक्र करने वाले बने। ए अल्लाह, आज मेरे घर में फख्र फाका है, तंगदस्ती है, गुर्बत है, ए अल्लाह मैं सब्र कर लूंगा, लेकिन अल्लाह तूने मुझे सेहत से नवाजा हुआ है, अल्लाह तूने आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, जबान दी तूने बोलने के लिए, ये पैर दिए मस्जिद तक चल के जाने के लिए, और रिज़्क़ और रोजी कमाने के लिए, चल के जाने के लिए, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन आज हम अक्सर लोगों को देखते हैं, हमारे सामने लोग आके बोलते हैं कि भाई देखो कमाई नहीं हो रही है, परेशानी में है, मुश्किल में है। हम उन लोगों से ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सेहत से नवाजा है। कितने लोगों को आप जाकर दवाखानों के अंदर देख लो, आधा जिस्म काम करना बंद हो गया, अब वो सारी जिंदगी चल नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं आंखों से देख नहीं सकते, रोते हुए ये कह रहे हैं कि जवानी में देखने की ताकत थी आंखों में, लेकिन क्या ही एक्सीडेंट हुआ, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, अब कुरान को देखना नसीब नहीं होता, अल्लाह के कलाम को देखकर पढ़ना नसीब नहीं होता। कभी उन लोगों के हालतों को जाकर देखें। आज हमारे पास दौलत नहीं है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, लेकिन अल्लाह ने सेहत जैसी अजीम दौलत से हमको नवाजा है। तो हम शुक्र जैसी अजीम इबादत को बजा लाएं, अल्लाह के सामने शुक्र करने वाले बने। और अल्लाह ने जिसको माल दिया हुआ है, सेहत के एतबार से वो कमजोर हैं, उनके लिए भी चाहिए सब्र करें अपनी जिंदगी के अंदर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखें, 18 साल तक जिस्म पे फोड़े हो चुके हैं, एक के बाद एक बेटे का इंतकाल होता जा रहा है, माल दौलत सब कुछ खत्म हो चुका है। 18 साल तक ये मुसीबत को बर्दाश्त किया है, तकलीफ को बर्दाश्त किया है, जो अल्लाह की तरफ से आई थी उस पर सब्र करते रहे हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हजरत अय्यूब साबिर बंदों में है, सब्र करने वालों में। हमने इनसे इम्तिहान लिया, उन्होंने सब्र किया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा शुक्र करते रहें। अल्लाह ने जो सेहत दी है, जिस कदर अल्लाह तबारक व तआला इत्मीनान के साथ हमें रखा हुआ है, हमेशा शुक्र गुजारी वाली जबान रखे। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला बना और जिक्र करने वाला बना और नेक बंदों में मुझे शामिल फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। हमेशा इस दुआ को पढ़ते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं ज्यादा दूंगा, वला इन कफरतुम, अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह का मामला हमेशा शुक्र गुजारी करते रहना है। अहले इल्म ने सलफ सालिहीन के वाक़ियात में एक वाक़िया लिखा हुआ है, एक साहब का मामला लिखा। उनका मामला ये था कि वो ये कहते थे, हमेशा 4 बातों पर अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ जब भी मैं मुसीबतों में घिर जाता हूँ। जब भी मुझे मुसीबत आती है तो 4 बातों पे मैं गौर करता हूँ। ये जो मुसीबत मुझे आई हुई है, इससे मेरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, मेरे दीन का तो नुकसान नहीं हो रहा है। मैं ये देखता हूँ हर आने वाली मुसीबत में ये गौर करता हूँ कि ये जो मुसीबत आई है, इसके आने के बाद क्या मेरा दीन का नुकसान हुआ या दुनिया का? दुनिया का नुकसान हुआ तो छोड़ देता हूँ, कोई मामला नहीं है, ये दुनिया जाएगी और फिर आएगी। मेरा दीन का नुकसान तो नहीं हुआ, मेरी नमाजें तो नहीं छूटी, मेरा और अल्लाह के मामले के अंदर कहीं ताल्लुक तो बिगड़ा तो नहीं, मैं सब्र करने में पीछे तो नहीं रहा, शुक्र करने में मैं पीछे तो नहीं रहा। मैं हमेशा ये देखता हूँ जब भी मुझे जिंदगी में मुसीबत आती है तो ये देखता हूँ कि दुनिया मालो दौलत का मामला है, ये तमाम चीजों का दुनिया का मामला है तो छोड़ देता हूँ। ईमान तो मेरा महफूज है, पहली बात ये देखता हूँ। और दूसरा मेरा मामला ये है कि जब भी मुझे मुसीबत आती है तो मैं ये देखता हूं कि ये मुसीबत की जो शक्ल है बहुत छोटी है। अल्लाह चाहता तो मुझे बड़ी मुसीबत में भी मुब्तला कर सकता था, ये तो बहुत छोटी मुसीबत है, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। पहली मुसीबत मेरा दीन महफूज है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और दूसरे मामले में मैं ये सोचता हूं ये मुसीबत जो आई है बहुत छोटी है, चाहता तो अल्लाह बड़ी मुसीबत में मुझे मुब्तला करता था, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह तूने छोटी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। तीसरे नंबर पर यह है कि जब भी मुसीबत आती है तो मैं फौरन कहता हूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक देता है तो मैं इस पर शुक्र अदा करता हूं। मुसीबत के आने पर मैं ये देखता हूं कि मेरी जबान से जो कलिमात निकलते हैं, क्या वो कलिमात बेसब्री की वजह से आज होते हैं ना कि बच्चे का इंतकाल हो गया या किसी परेशानी में बच्चा फंस गया तो हम ये कहते हैं क्या अल्लाह को हमारा ही बच्चा मिला था, क्या अल्लाह को हमारा ही घर मिला था, क्या अल्लाह को परेशानियां हमारे देना था? ये काफिर की अलामत है, नाफरमान की अलामत है। ये जबान से जुमले निकालने वाले ये अल्लाह के नाफरमान हैं। ईमान वाले की जबान ये होती है कि ये मामला अल्लाह की तरफ से है। ये जो कुछ मामला आज मुसीबत मुझे पहुंची है, अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत को दूर करेगा। और चौथे नंबर पर यह है कि जो मुसीबत मेरे ऊपर आती है इस पर सब्र करने की कुव्वत भी अल्लाह ही मुझे देता है, इस पर शुक्र अदा करता हूं। जब भी मुझे मुसीबत आती है तो फौरन मैं ये देख लेता हूं मेरा ईमान महफूज है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। दूसरे नंबर पर यह देखता हूं कि अगर
یہ مصیبت کو چھوٹی مان کر اللہ اور بڑی مصیبت دے سکتا تھا، یہ سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر جب مصیبت آتی ہے فوراً زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون آ جاتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جب بھی مجھے تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے، اس پر صبر کی جو قوت اللہ مجھے دیتا ہے، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، ہر گھر، ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دے کر اللہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، کسی کو اللہ دکھ اور تکلیف مصیبتوں میں مبتلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ایمان والا وہ ہوتا ہے جب اللہ اس کو نعمتیں دیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ ساری زندگی صبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ ہاں کسی کے گھورنے میں، کسی کی نظروں میں، یا کسی کے تاگے لا کے پھینکنے میں، یا کسی کے جادو ٹونا کرنے میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ ہاں لیکن ایمان والا ہے، مشکلات آئیں گی، صبر کرتے رہنا ہے، اللہ سے صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شکر کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادتوں میں زندگی کو گزارے۔ بہت وقت زندگی کا نکل گیا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج قرآن کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، کل پڑھیں گے نہیں، رمضان ہے بعد پڑھیں گے نہیں، رمضان میں مکمل ختم کریں گے نہیں۔ ہر لمحے کو غنیمت سمجھو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو پڑھو اور سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھیں گے، زندگی آپ کی مضبوط ہوگی، استقامت کے ساتھ آپ ایمان پر جم جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ہاں لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، بے صبروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتے۔ صبر کرنا چاہیے، رونا، چلانا، واویلا مچانا، لوگوں کے سامنے بولتے پھرنا نہیں ہے، کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے، اچھی طریقے سے وضو بنانا ہے، 2 رکعت نماز اللہ کے سامنے پڑھنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، اور ہو سکا تو نماز کے اندر ہی سجدے کی حالت میں جتنا چاہے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بستر سے اٹھی ہے اور اٹھ کر اللہ چلنے لگی تو وہ فوراً گر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ مجھے تیرا ڈر عطا فرما، اے اللہ تیرا ڈر عطا فرما، اے اللہ مجھے صاف ستھرا بنا دے، پاک و صاف بنا دے، اے اللہ تو میرا دوست بن جا، تیرے علاوہ میرا بہترین کوئی اور دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر کبھی ناشکرا نہیں بننا ہے،
اور کبھی بے صبرا نہیں بننا ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے ہمیشہ صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور صبر کرنا بھی عبادت ہے، شکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ دونوں جنت میں جانے والے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ بہتر ہونے والا ہے، اور ان کا معاملہ ہمیشہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شکر کرنے والا بنائے، اور ہر معاملے پہ اللہ کی مرضی شامل حال رکھ کر صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہے جہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ اس دنیا کے اندر جہاں کہیں امت مسلمہ آج پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور مدد اور نصرتوں کے فیصلے اللہ نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم